इन दिनों निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ गुरुवार को रिसर्जेंट राजस्थान का शानदार आगाज हुआ। आयोजन में हिस्सा ले रहे उद्योगपतियों को उद्घाटन के साथ ही निवेश का निमंत्रण दिया गया। आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया और कहा कि राजस्थान में विकास की असीम संभावनाएं हैं। राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के मकसद से गुरुवार को जयपुर के सीतापुरा में 2 दिन तक चलने वाले रिसर्जेंट राजस्थान महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। आयोजन में वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी, टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री समेत ज्यादातर प्रमुख उद्योगपति मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान में विकास की असीम संभावनाएं हैं और राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि निवेशकों के सम्मेलन ने दिखाया है कि राजस्थान में निवेश बढ़ा है। India in the last few months has been following a policy with renewed vigor of attracting investment into the country. Public investment has significantly increased. Foreign direct investment has considerably increased. Private sector investment is slowly picking up. We've eased all the rules as far as investments is concerned. And I'm sure Rajasthan, as an extremely progressive state, is certainly going to gain from this new investment chapter that India is writing. जेटली ने यह भी कहा कि भारत पिछले कुछ महीने से देश में निवेश को आकर्षित करने वाली क्षमता की नई नीति पर काम कर रहा है, जिसका असर विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। Rajasthan should now endeavor to become a pioneer state in the ease of doing business, where land is easily available, sanctions are easily granted, and between the date that all these honorable gentlemen on the dais and elsewhere in this beautiful convention center decide to invest in the state and the actual commencement of their projects, if the time taken is the least compared to any other part of the country, your right to future investments and your entitlement to those future investments is also going to increase. देश के समुचित विकास के लिए पीपीपी मॉडल पर मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और क्लीन इंडिया के नारे का उल्लेख करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने निवेश के लिए काफी संख्या में एमओयू किए हैं। I am happy to say out of the 100 cities selected for smart cities, 4 cities are from the state of Rajasthan. Kota, Udaipur and then Jaipur, all these cities, they are part of the smart city program. And then we are also happy to say that within the Amrut cities of the country, here in Rajasthan alone, more than 20 cities, 29 cities are chosen for development under Atal Mission, that is Amrut program. We'll be funding for sanitation, we'll be funding for solid waste management, we'll be funding for transportation, we'll be funding for construction of the houses also in these cities. दुनिया भर के निवेशकों को राजस्थान आने का न्योता देते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आज इमरान खान जैसा राज्य का युवा अपने कौशल विकास के कारण देश विदेश में नाम कमा रहा है। The state has always been a catalyst for entrepreneurship, and examples like Nishant Patni and Pranshu Bhandari, who developed the popular English learning app, Imran Khan of Alwar, who developed 50 mobile apps, and many others like them, make me, and I'm sure all of you, very, very, very proud of them and of our state. I thank with all my heart our investors for partnering with Rajasthan, and I also thank the various ministries of the central government for their unparalleled support to us. Really, I could not have done any of this without all of them. So all of them. रिसर्जेंट राजस्थान को सरकार और प्रदेश के उद्योग जगत में आशा की दृष्टि से देखा जा रहा है। असल में अडानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा जैसे उद्योग देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राजस्थान इनके निवेश से करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश बढ़ाने वाला है। अभी तक 3700 निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस पूरी कवायद से राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री अनंत कुमार, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित कई मंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन को देश विदेश के निवेशक और राजनयिकों ने संबोधित किया और निवेश का भरोसा दिया। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।